Hello students, you are welcome again on the platform of online classes of Physics Part 1 for the course BSc B.Ed integrated course and for the college of Shahid Pramod B.Ed College, Muzaffarpur. And myself is Krishna Kumar and today's topic of discussion is gravitational field due to a spherical shell. So before going to discuss this point, I want to solve couple of examples based on gravitational potential. Actually, we have derived the equation for the gravitational potential due to mass m. So, on the basis of that topic, first of all, I would like to solve couple of examples, then we will move to discuss this point, gravitational field. So, the first question based on gravitational potential due to a point mass m. So, the first question is that for an equilateral triangle having side A and the mass equal masses at each point of this triangle, that is capital M. So, question is that at its center what will be the gravitational potential? So, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, तीनों साइड बराबर है और इसके तीनों कॉर्नर पे कैपिटल मास m है. सो क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा. ओके, और ये किसके लिए है? ओनली पॉइंट मास इज देयर, scattered mass is not there, point mass is there. So, due to this mass m, what is the potential at center? So, consider this point as a P और मैं केवल एक कॉर्नर की बात कर रहा हूं. अगर हम ऐसा बनाएंगे और सपोज दिस इज सेंटर P, इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट होगा या लाइन होगा इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा. ये भी A है, ये भी A है. जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक पहला एक जो एंगल होता है कितना होता है? 60 डिग्री. तो ये 30 डिग्री हो जाएगा यहां पे. और जब ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा का पूरा A है तो ये कितना हो जाएगा? A/2. दिस विल बी A/2. सो व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ हम निकालेंगे एंड दिस लेंथ नथिंग बिटवीन रेडियस बिटवीन दैट इज P एंड पॉइंट मास M. सो अगर ये ट्रायंगल है, यहां पे ये 30 डिग्री है और ये A/2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कैसे निकालेंगे? cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि A/2 अपॉन हाइपोटेनस को हमने x माना तो x. सो व्हाट विल बी x? x विल बी A/2 1 अपॉन cos 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? A/2 इंटू 1 अपॉन √3/2 और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा? A अपॉन √3. That is the value of x. यानी कि इसमें ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना आया? A अपॉन √3. A अपॉन √3. Now, due to this point mass m, if
we want to calculate the gravitational potential at point P. So what is the formula of that? हमने कल डिराइव किया था. So at point P potential difference will be minus gm upon r. Minus gm upon r. Where g and m is here, or r is nothing but this x. R is nothing but this x. So put the value of x a upon root 3. तो क्या हो जाएगा ये? माइनस रूट 3 जी एम अपॉन ए. माइनस रूट 3 जी एम अपॉन ए. ओके, बट दिस इज द पोटेंशियल. ये जो पोटेंशियल हमने निकाला ये केवल एक ही पॉइंट मास m के कारण निकाला है, लेकिन यहां पे तो 3 मास है. तो सिंस दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या? यानी कि एट P पोटेंशियल ड्यू टू दिस m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस m. सो एट पॉइंट P द टोटल पोटेंशियल विल बी summation of the potentials due to each point. Due to each point means all the 3 corners of the equilateral triangle, we have to simply add the potential. So at point P, Vp will be V1 plus V2 plus V3. And since this is equilateral triangle, and with respect to the center, this is a symmetrical structure, so V1, V2 and V3 will be equal. So that will be 3V1. And what is the value of V1? That is minus 3 gm upon A. So what is this? Minus root 3 gm upon A. So what will the potential at point P? That will be minus 3 root 3 gm upon A, and this is the final answer. ये समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? कि at point P, that is the center of equilateral triangle, due to this mass m and this mass m, what will be the gravitational potential? That will be minus 3 root 3 gm upon A. तो सिंपली हमको एक का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू 1 मास, और हमको उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. सिंपल. ओके, नाउ लेट अस सोल्व अनदर एग्जांपल. आप जितना एग्जांपल सोल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. Another question is that, question number 2, what is the work done to move m from A to B slowly as shown in फिगर. और फिगर में क्या दिखा रहा है कि यहां पे एक मास m है और इसे x डिस्टेंस पर या कितना ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और उसे और कुछ दूरी पर पॉइंट B है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है. यानी कि ये जो A पॉइंट है वो यहां और ये पॉइंट के मिडिल में. ओके, तो ये m जो है वह A पर है और इस m को हमको उठा करके B पे ले जाना है, तो वर्क डन क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन.
कैसे निकालेंगे? अगर ये इसको मैं x मानता हूं तो ये भी x होगा, बिकॉज कि A इज द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये भी x डिस्टेंस पे है। ओके, अब ये जो कैपिटल M है, इसके कारण ड्यू टू दिस कैपिटल M देयर विल बी सम ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन, यानी कि वो A से भी यहां पे कुछ फोर्स लग रहा है और B से भी यहां पे फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस एट A निकालना है या तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस B निकालना है तो व्हाट विल बी VB माइनस VA, ये क्या हो जाएगा? यानी कि अगर B पे पोटेंशियल निकालना है तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा? वर्क डन टू मूव दिस मास M फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई M। एम आई राइट? क्या हो जाएगा ये? वर्क डन B A टू B डिवाइडेड बाई M। इसका मतलब ये वर्क डन क्या हो जाएगा? फ्रॉम A टू B, दैट इज M इंटू VB माइनस VA। अब मुझे बताइए कि एट पॉइंट B व्हाट इज द पोटेंशियल? दैट इज VB। कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस GM अपॉन R, and minus GM upon R, और for B what is the R? That is x plus x, यानी कि 2x। So potential at point B will be minus J upon 2x and potential at point A will be minus GM upon R, and for point A what is the value of R? That is x, so this will be minus GM upon x। अब क्या करना है आपको? ये वाले टर्म में VB और VA का वैल्यू पुट कर देना है। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? सोल्व कीजिए। दैट इज वर्क डन फ्रॉम A टू B, क्योंकि हमको A पॉइंट से B पॉइंट में मास ले जाना है, तो दैट विल बी M इंटू VB का मतलब माइनस GM अपॉन 2x माइनस ऑफ GM अपॉन x। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे M, यहां पे 2x इस कैल्शियम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस GM और प्लस 2GM, दैट इज M इंटू GM upon 2x। That is work done from A to B will be how much? GM M upon 2x. That is the work done to move the mass from point A to point B, which is a distance x from the capital mass M. Okay. So I think these are the two examples, and with the help of this example, you can easily understand how we can calculate the gravitational potential due to point mass M. Due to point mass M. Now we will discuss the today's main topic, that is gravitational field due to a spherical shell. यानी कि आपकी ये सिलेबस में है कि ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर पॉइंट मास के लिए हम देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है? स्फेरिकल सेल के कारण
जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कितना होता है, वो कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर दैट वी विल डिस्कस नाउ. And sometimes this spherical shell is also known as hollow sphere. ये hollow sphere के नाम से भी पूछा जा सकता है. And we have already discussed how to calculate the gravitational field strength. For example, there is a mass m and a distance of r. There is another small mass m that is called test mass. So at point m, the value of gravitational field strength denoted by E, it will be equal to gm upon r square. Gm upon r square. And this is given by Gauss law of gravitation. Gauss law of gravitation. So you can easily write down the gravitational field at point m due to this test mass m as a distance of r, that is gm upon r square. And we have to see how gravitational field is calculated around, inside or outside for a spherical shell. So let us draw a figure of a spherical shell, then you will understand easily. पहले हम उस spherical shell का फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आप इस चीज को आप समझ जाओगे. spherical shell मीन्स क्या, ये अंदर का हॉलो है और इतना ही में देखो यहाँ पे मास है. देखो ये वाला जो है वो मास है, ये थिकनेस है इसका, और इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है. शेप कैसा है, स्फेरिकल है. दिस इज एक्चुअली में 3 डायमेंशनल और देयर इज सेंटर सो कॉल्ड 0. तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका कितने जगह पे देखना पड़ेगा. पहले हमको देखना पड़ेगा आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर, दैट इज आउटसाइड. दूसरा देखना पड़ेगा कि इसके सरफेस पे कितना है, यानी कि एट सरफेस. और तीसरा ये देखना पड़ेगा कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा. ओके, तो अब हम पहली बात करेंगे आउटसाइड का. सो आउटसाइड, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर, सपोज ए पॉइंट P and the distance between point P and the center of this sphere is r, and capital R is the radius of this spherical shell. Means for the outside condition, small r will be greater than capital R. यहां पे देखिए स्मॉल r बड़ा है और ये रेडियस से ज्यादा बड़ा होगा, तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो जो सबसे पहला चीज आपको समझना है कि एट पॉइंट P व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यहां पे r डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर. So Vp will be how much? Vp means Ep will be how much? Gm upon r square. Because here the value of r is no.
for this distance from O to P, that is R, so gravitational potential, gravitational field at point P due to this mass m at center will be gm upon r square. यानी कि अगर इसके आउटसाइड में अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, सपोज हेयर और हेयर और हेयर, सो इज देयर विल बी एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड? आपको क्या लगता है कि अगर हमने इस पॉइंट P के अलावे और किसी और पॉइंट पे जो आउटसाइड है, आउटसाइड में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं, इंफिनिटी पॉइंट्स में भी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, तो अगर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हमको, फॉर एग्जांपल अगर हमको यहां पे निकालना है, दैट इज Q, सो इज देयर विल बी एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? यस, यस इट इज, चेंज होगा, बिकॉज एज फार एज कंसर्न this formula, so EP, that is gravitational field strength, is inversely proportional to a square of the radius. यानी कि ये अगर Q पॉइंट है, इसका मतलब ये रेडियस चेंज होगा क्या? नहीं, यहां पे R का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे R का वैल्यू कम होगा। यानी कि अगर R का वैल्यू 1 कम होगा या 2 कम होगा तो उसका पोटेंशियल 4 गुना बढ़ेगा। यानी कि इसके सेंटर से ये पॉइंट P जो आउटसाइड में है वह जितना नजदीक होगा उतना ही उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ज्यादा होगा, लेकिन इट इज आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर। सो द EP, that is gravitational field strength, is inversely proportional to the square of the distance between point P and that of center. Okay. Now, अभी तो ये आउटसाइड का पता चल गया, कितना हो जाएगा? gm upon r square. Now, we will discuss the second case, that is at surface. और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि किसी भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में, या स्फीयरिकल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में जो उसका मास है, उसका जो मास है वो हमेशा सेंटर पे ही रहता है। दिस इज द वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ उसका जो कैपिटल मास m जो है, जो इसका हम मास कंसीडर करते हैं, ये हमेशा उसके सेंटर पे रहता है। कौन से स्ट्रक्चर के लिए? सिमेट्रिकल स्फेरिकल के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ओनली फॉर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर द मास इज ऑलवेज at the center of this sphere. That's why I am showing this mass m. और इसीलिए तो मैं इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में मैं ये फील्ड का वैल्यू निकाल रहा हूं। ओके, सो एट सरफेस क्या होगा? एट सरफेस मीन्स क्या? यहां पे, यानी कि इसके बाउंड्री पे। एट सरफेस मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। यहां पे यानी कि जो R का वैल्यू होगा, स्मॉल r का, वो कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो एट सरफेस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ EP? दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर। और सिंस द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू कैपिटल R, सो व्हाट विल द ग्रेविटेशनल फील्ड? दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो वी हैव calculated the gravitational field strength at outside and at surface. Now we will calculate the gravitational field strength in the inside of this sphere.
So we will discuss the third case, that is inside of the sphere. Inside of the sphere. Inside the sphere means what? यानी कि इस स्फीयर के अंदर कहीं भी अगर हम फील्ड निकालेंगे, एट हेयर और एट हेयर, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? सो इनसाइड द स्फीयर at any point field strength is considered to be 0. अब आप बोलेंगे कि ये 0 कैसा है? बिकॉज कि जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड का फर्स्ट लेक्चर ले रहा था उस समय मैंने बताया था कि फॉर एनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एट सेंटर ऑलवेज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 0. तो आप तो बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि सेंटर पे 0 होता है, लेकिन अभी आप तो अलग ही बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे निकालो तो 0 होगा. ये कैसे हो जाएगा? उसका कारण मैं बताता हूं कि जैसे ये स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर है यहां पे, और मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर यहां पे है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं. देखो यहां पे, इसका मतलब है कि यहां पे अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा होल स्फीयर में, यानी कि मास तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. तो अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये जो पॉइंट पी सेंटर से थोड़ी दूरी पे है, तो यहां पे मास m होगा, और ये जो मास है वो थोड़ा कम होगा, लेस होगा, और ये वाला जो मास है ये थोड़ा ज्यादा होगा. तो अगर इस पॉइंट P पे अगर हमको फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो ये जो रेडियस है, क्योंकि मास तो हर जगह पे है, तो कुछ यहां पे लगेगा, देखो इधर 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 इधर, यानी कि अगर इस एरिया का अगर हमने फील्ड निकाला तो मास ज्यादा है और रेडियस छोटा है. यानी कि कंसीडर कि अगर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अगर हमने पॉइंट मास निकाला तो यहां पे Vp क्या हो जाएगा? डेट इज Gm/r². ओके, अब दूसरा चीज कंसीडर करो कि ये जो रेस्ट वाला है, इस केस में मास ज्यादा है, यहां पे मास कम है, रेडियस ज्यादा है. दूसरे वाले केस में क्या है? मास ज्यादा है और रेडियस कम है. तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप निकालना चाहो मास ड्यू टू पॉइंट मास m हेयर, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा Gm/r². तो इस केस में क्या होगा? m का वैल्यू ज्यादा है लेकिन r का वैल्यू छोटा है, यानी कि लगभग इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगा वह इक्वल टू फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा? लगभग सेम होगा. एंड ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा क्या? नहीं. यानी कि अगर इस पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो जितना अपर डायरेक्शन में होगा उतना ही डाउन डायरेक्शन में होगा. एंड ड्यू टू दिस बैलेंस, जहां कि एक केस में मास का वैल्यू बढ़ रहा है और रेडियस का वैल्यू छोटा है, और दूसरे केस में रेडियस का वैल्यू ज्यादा है और मास का वैल्यू कम है. क्योंकि अगर यहां पे देखिए, अगर रेडियस का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो ये पूरा पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके डिनोमिनेटर में है. लेकिन ठीक उसी समय मास का वैल्यू तो ज्यादा है, तो उसको बैलेंस कर रहा है, यानी कि एक घटा रहा है तो दूसरा बढ़ा रहा है. दूसरे केस में उल्टा हो रहा है कि रेडियस का वैल्यू छोटा रहा है तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा आएगा, लेकिन मास का वैल्यू कम है तो वो उसको बैलेंस कर रहा है.
यानी कि इन द बोथ द केसेस द पोटेंशियल इज बैलेंस एट एनी पॉइंट रेदर देन दिस सेंटर, और ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट कर देगा। इसका मतलब है कि ईपी विल बी जीरो। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी हजम होने वाली चीज नहीं है। बिकॉज कि मैंने आपको पहले बताया था कि एट सेंटर ऑफ एनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू इज जीरो, बट फॉर द स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर inside the sphere at any point the value of field strength is जीरो। और वो क्यों हुआ वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं केवल यहां पे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट यहां पे भी है, अगर यहां पे भी है तो उसके लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक केस में जहां पे मास कम है तो रेडियस ज्यादा है, दूसरे केस में जहां रेडियस कम है मास ज्यादा है। और ड्यू टू दिस फॉर्मूला ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, यानी कि लगभग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। सो एक दूसरे को जब कैंसल आउट करेगा तो जो फाइनल रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि अभी आप कन्विंस हो गए, यानी कि इनसाइड द होलो स्फीयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां पे ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर है और ये ई का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और इसी तीनों चीज को तो हमको याद रखना है। ओके मुझे नहीं लग रहा है कि इसको डिक्टेशन कराने की जरूरत है, यू कैन राइट डाउन ऑन योर ओन। नाउ द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर टुडेज क्लास, वन ऑफ द ग्राफ रिलेटेड टू ऑल दिस थ्री कंडीशंस। जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वैसा आपको समझ में आ जाए। ये ग्राफ कैसा होगा वो देख लीजिए। ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे मैं एक स्फीयर बना दूंगा, देखो यहां पे हैविंग रेडियस आर। ये यहां पे इसको मैं बोलूंगा कि ये फील्ड स्ट्रेंथ है और इसको बोलूंगा कि ये रेडियस है, और ये इसका ओरिजिन है। नाउ फॉर द फर्स्ट केस दैट इज आउटसाइड, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा सरफेस का। ओके और सरफेस से भी पहला बात करूंगा इनसाइड का, यानी कि अगर इनसाइड में है, यहां पे देखो, यहां पे इनसाइड में, यानी कि इनसाइड द सरफेस, इनसाइड मींस क्या? दिस एरिया, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और ये कहां तक आएगा? आर डिस्टेंस तक। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये किसका एरिया हो गया? इनसाइड का, जहां पे ई का वैल्यू जीरो है। और यहां पे हम कहां पहुंच गए? सरफेस पे, जहां पे ये आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, तो वहां पे इसका वैल्यू क्या है? ई का वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा। देखिए यहां पे ये वाला, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये कहां पे हो गया? सरफेस का। नाउ एट द आउटसाइड व्हाट द वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, सिंस दिस आर इज वेरिएबल, ये आर तो वेरी करेगा, आउटसाइड में हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर आर वेरी करेगा, इसका मतलब जैसे जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ाओगे, अगर आर का वैल्यू आप बड़ा करोगे, बढ़ाओगे, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से ये कहीं ऐसा फील्ड स्ट्रेंथ होगा, और जब इंफिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसा जैसा आर का वैल्यू यहां पे बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कम होता जा रहा है। और कितना कम? देखो यहां पे स्क्वायर है, आर का वैल्यू अगर आप 2 बढ़ा रहे हो तो उसके पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह
4 गुना कम हो रहा है, इसलिए तो ऐसा ग्राफ है, देखो ऐसा। तो दिस इज द केस ऑफ आउटसाइड, मीन्स if you will be asked about the derivation or point to discuss the gravitational field due to a spherical shell, तो आपको 3 कंडीशन एक्सप्लेन करने हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ, और इस ग्राफ में सब चीज क्लियर हो जाता है कि इस ग्राफ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ वेदर एट सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। So I think this is very clear. So अभी अगर आपको इस समझने में कोई दिक्कत है तो you can ask me in the comment section. आप कमेंट नहीं करते हो, but every time I am asking to ask some questions. आप डरो मत, क्वेश्चन पूछो, अगर कंफ्यूजन है तो उसका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन यू आर नॉट आस्किंग, वेरी गुड, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। So, by tomorrow we will discuss the next topic. Thank you.